as I said that we will be doing in the class this case study which was there for ACCA students for September 2023 exam which happened just last week. पहले इसको करने, इसको मैं 4 क्लास चलाने वाला हूं. आज की क्लास तो कुछ कर ही नहीं पा रहे एज सच, बेसिकली 3 और क्लास. ये मैं आप लोग को सेपरेटली मेल करूंगा अभी क्लास के बाद. ये उसके अंदर फोल्डर में नहीं डाला हुआ है. यू विल रीड दिस प्रीसीन 1 by 1 line. I am not reading 1 by 1 line. It is talking about airline industry, the overview of the industry, and then it is talking about the company in this industry. The name of the company is Courgette. The name of the company Courgette. Based on the industry, the background information about the company is given. First of all, airline industry information. Now, airline industry is a very big industry. It's not only airline companies, those who are running airline to take passengers from here to there. It is covering the airports. It is covering the flights when they are flying. Then the management of the traffic and all that. Everything is covered under airline industry. So that is, they are talking initially what is the airline industry. But we are talking here only those airline where there is a company, Indigo, Jet Airways, Vistara, so many companies are there. Those who are running their aircraft from one place to another. No problem. From one place to another. Now, they are talking about, you can say, a particular region. Say maybe they are talking about Europe. Because the way they are giving the feeling that we are running airlines in this area and all that, then they are talking about Europe. Europe में जितना भी है, मान लीजिए UK है, then Ireland है, then you can say Germany है, जो भी countries है, सबको लेकर अब नाम नहीं दे रहा है कि we are talking about Europe. They are saying they are talking about a continent, Hyundai. There is no continent called Hyundai. But indirectly, the way we are reading the pre-scene, feeling ये आ रहा है यूरोप का बात कर रहा है, डेवलप्ड कंट्रीज है, इकोनॉमी एडवांस्ड है, पैसे सबके पास है. दैट वे they are talking about airline running in that country, and they have said that there is free trade between them and all that. Maybe UK is Brexit, but still they are talking about free trade zone and all that. That is, they have given an initial introduction about the airline industry. Then they are saying that there are 2-3 types of airline, those who are running airline in the world, in this region also. One is the airline, those who are very big. They are running the airline based on hub. Hub means they are taking the passengers from different places, placing them on one location, and then from there they are again transferred to another airline and then sent to the destination. Those airlines have first class, have a business class, and they have economy class also. But then there are airlines like in India, Indigo Airlines. They have only economy class, no business class, no first class, which we say as low frill airlines. In those economy class or those types of airline companies, they don't have any hub. They are taking you from one place to the destination by one airline only. They are not transferring you from here to there. So their operations are less cumbersome. Their cost is less. And they are not offering you anything other than taking you from one place to another. No food, nothing. बस उनका काम है आपको यहां से वहां ले जाना. तो the wastages are less. The food are only offered to those who pay separately. The services are offered extra to those who pay separately. So the charges are less, the flight tickets prices are less, and then they are called low frill airlines, point-to-point airline companies. In India, I say Indigo Airlines. यानी कि अगर मैं प्रीसीन पढ़ूंगा तो मैं सीधा सीधी क्या करूंगा, मैं गूगल में जाकर चैट जीपीटी में जाकर इंडिगो एयरलाइंस का कुछ राइटअप निकालूंगा, यही करूंगा ना. तो जब आपको प्रीसीन मिलेगा आप रिसर्च करोगे, मैं करूंगा आप लोग के लिए, आप टेंशन मत लीजिए. दे हैव रिटन एवरीवेयर. आई एम नॉट ओपनिंग अ मटेरियल.
दिस इज द मटेरियल विच इज गिवन बाय द इंस्टीट्यूट, जस्ट 2 पेजेस। उसमें बकायदा उन्होंने लिखा है avoid extensive additional research into the industry, even सीमा also writing this। ये नहीं कि ACC लिखा है, बोलता है प्री सीन इंफॉर्मेशन, ये नहीं कि आप उस इंडस्ट्री के बारे में रिसर्च ही करने बैठ जाइए। वो रिसर्च करने में आपको 3 महीना से भी ज्यादा लग जाएगा। कहां? फॉर ACC वी आर गेटिंग 10-15 days, फॉर सीमा वी आर गेटिंग 40 days। डोंट डू रिसर्च विच इज नॉट रिक्वायर्ड। आपके लिए रिसर्च मैं भी करूंगा, थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर ऐसे नहीं घुसेंगे कि आप पागल हो जाएं उसके लिए। तो आई मीन टू से दैट कि सपोज इफ आई वांट टू नो अबाउट दिस इंडस्ट्री, अब हम तो एयरलाइन में कभी काम किए नहीं है, तो इन दैट केस थोड़ा सा रिसर्च करेंगे। बेटर वे इज व्हाट? फ्रॉम टुडे ऑलवेज रेफर वन पर्टिकुलर न्यूज़पेपर और मे बी अप ऑनलाइन न्यूज़पेपर डाउनलोड, में भी आप टाइम्स का कुछ का किसी का डाउनलोड ऐप कर लीजिए, या न्यूज मार्केट में जो भी आता है डेली, एक आधा 1 घंटा कोई पर्टिकुलर न्यूज सुनिए। शेयर मार्केट में क्या चल रहा है, क्या इंडस्ट्री में हो रहा है, G20 में क्या हो रहा है, कौन सा इंडस्ट्री बढ़ने वाला है, ये सब आपके पास जनरल कॉमन ज्ञान होना चाहिए। तो आपको अगर स्पेसिफिक इंडस्ट्री का नहीं भी मालूम है, यू विल बी एबल टू राइट अ वेरी गुड आंसर। दैट्स नॉट अ 1 day प्रिपरेशन। सो नीतू, in place of going into foreign exchange study, you should be doing this every day, every student, because this is like that only। आप हर इंडस्ट्री के बारे में कैसे जानोगे? न्यूज से। नॉर्मली दिन में ये एग्जाम होने के बाद भी पास जब हो जाएं, ये चीज अपने लाइफ में कंटिन्यू करना है कि हम जिस एरिया से रिलेटेड है, हम बिजनेस से रिलेटेड है, मे बी वी आर डूइंग जॉब और मे बी वी आर डूइंग आवर ओन बिजनेस, तो हमें बिजनेस केसेस रेगुलरली रेफर करने हैं। बिजनेस केसेस न्यूज के थ्रू, चैनल्स के थ्रू, जो अच्छा लगता है, जब उसके आती है ऐप के थ्रू, उसको, मेरे ख्याल से न्यूज़पेपर तो मैं भी नहीं पढ़ता, बट ऐप मेरा 3-4 डाउनलोड किया हुआ है। पॉपअप आता है, क्लास खत्म होती है सबसे पहले खोलकर देखता हूं, क्लास के पहले देखता हूं, रात को सोने के टाइम पे देखता हूं, जब खाली रहता हूं तो न्यूज जरूर देखता हूं। उसका आपको पढ़ाने से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा अपना पर्सनल डेवलपमेंट, बिकॉज हम बिजनेस स्टडी कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो मेरे को तो दुनिया में क्या हो रहा है मालूम होना चाहिए ना। जियो पॉलिटिकल इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज, कंट्री का इश्यूज, कौन सा कंपनी इंडिया किसके साथ क्या कर रहा है, क्या फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, शेयर मार्केट कैसा चल रहा है, क्या ये होना चाहिए। आप इन्वेस्ट करो ना करो, आपको ये जानना होगा। दैट इज एसेंशियल, बिकॉज दैट नोबडी कैन टीच यू इन एनी वन क्लास, एनी क्लास, दैट इज एसेंशियल। उन्होंने लिखा है, मैं कोई मन से नहीं बोल रहा, उन्होंने लिखा है आपको बेटर प्रिपेयर करने के लिए। जैसे यहां जाइए, टिप्स को क्लिक करके जाने बोल रहा है। जब आप इसमें जाएंगे, नाउ टिप्स क्लिक करके, तो यू नीड टू बी ACC रजिस्टर्ड स्टूडेंट ओनली। जब आप इसमें जाएंगे तो यहां पर ये लोग ये सब लिखे हैं, मैं पढ़ा था, बिकॉज इंस्टीट्यूट जो बोलेगा वो तो जानना पड़ेगा ना। आई एम नॉट गोइंग देयर बिकॉज इट इज वेस्ट ऑफ टाइम। कि आपको रेगुलरली एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर या पर्टिकुलर कोई ऐप या न्यूज चैनल आपको रेगुलरली रेफर करना है, बिकॉज उससे आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल लॉजिक देने का स्किल्स बढ़ेगा, एंड यू विल बी एबल टू राइट अ बेटर आंसर इन द एग्जाम। ओके, तो मैं उसमें नहीं जा रहा, आगे बढ़ते हैं। देन दे आर सेइंग कि कितने टाइप के पैसेंजर, एज आई सेड फर्स्ट क्लास, नॉर्मली पैसेंजर्स आर 2 टाइप्स। कुछ लोग एयरलाइन में जा रहे हैं घूमने के लिए, और कुछ लोग बिजनेस के लिए, काम के लिए यहां से वहां जा रहे हैं। दोज हु आर गोइंग फॉर बिजनेस ट्रिप, जनरली दे आर यूजिंग फर्स्ट क्लास एंड बिजनेस क्लास। जनरली दोज हु आर गोइंग फॉर रोमिंग, घूमने उमने के लिए, दे आर यूजिंग इकोनॉमी क्लास। नॉर्मली आप बोलेंगे सर मैं घूमने जाता हूं बिजनेस क्लास में, जाइए, कोई मना नहीं कर रहा है, बट नॉर्मल लॉजिक यही है। द टाइप्स ऑफ एयरलाइन दे हैव रिटन, इंटरनेशनल एयरलाइंस, एमिरेट्स और ये सब, जितना भी सिंगापुर एयरलाइंस, ये सब है, इंडिया से भी बहुत सारे हैं।
इंडियन एयरलाइन जिसको टाटा अभी चला रहा है एंड ऑल दैट। नेशनल एयरलाइंस, जो नेशनल मतलब नॉट दैट कि दे आर नॉट रनिंग आउटसाइड द कंट्री, लेकिन ज्यादातर वो इनसाइड कंट्री। और रीजनल एयरलाइंस, छोटे छोटे एयरलाइन है जो छोटे छोटे रीजन को कवर करते हैं। कानपुर जाना है, नागपुर जाना है सपोज इंडिया में, वहां पर मे बी बिग एयरलाइंस आर नॉट वर्किंग, स्मॉल रीजनल एयरलाइंस आर वर्किंग। व्हेन दिस लो फ्रिल एयरलाइंस कल्चर कम्स, देन ये रीजनल एयरलाइंस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सभी जगह। सब जगह छोटा छोटा फ्लाइट्स है, आधे घंटे के। आपको सपोज यहां से बांग्लादेश जाना है, इट्स 30 मिनट्स फ्लाइट, इट इज कनेक्टिंग टू कंट्रीज। बट you can understand that ki if you go in a train or anywhere, then in that case it will be taking huge time. So regional flights is national and all that, different types of flights running हो रहा है। इंडस्ट्री के बारे में बता रहा है। फुल सर्विस एयरलाइन, आपको खाना पीना, बढ़िया लेग रूम्स ये सब देंगे। देन इन दैट केस हब के थ्रू ऑपरेट करेंगे, देयर आर एक्स्ट्रा चार्जेस। लो कॉस्ट एयरलाइंस जो हम लोग का कंपनी है इसकी स्टडी में, कोई खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा सर्विस नहीं मिलेगा, बस आपको उड़ा के एक जगह से दूसरा जगह ले जाएंगे। चार्टर एयरलाइंस, देयर आर मेनी एयरलाइन कंपनीज विच आर नॉट सेलिंग द टिकट्स टू द कस्टमर्स। एक एजेंट को अपॉइंट कर लिया या कोई ट्रेवल कंपनी को हायर कर लिए, ट्रेवल कंपनी बोला मेरा सारा कस्टमर यहां से वहां उड़ के जाएगा, उसके लिए चार्टर प्लेन, और मे बी चार्टर प्लेन फॉर मिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर्स एंड ऑल दैट, दोज टाइप्स ऑफ एयरलाइंस आर ऑल्सो देयर। एंड कार्गो एयरलाइंस, दोज हु आर टेकिंग ओनली द गुड्स। The different types of airline based on business model and the different types of airlines based on different services. Then the bigger airlines which are having a hub, आपको सब कस्टमर को एक जगह से लाके हब पे लाएगा, हब से दूसरा जगह पहुंचाएगा। एंड पॉइंट टू पॉइंट मींस इंडिगो एंड ऑल दैट, बस एक जगह से उड़ेगा सीधा डेस्टिनेशन में, नो हब। हब होने से द कॉस्ट इंक्रीजेस, यू नीड टू पुट द, आपको अलग से लॉन्च बनाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, बहुत सारा चीज होता है। तो इन पॉइंट टू पॉइंट एयरलाइंस द कॉस्ट आर लेस एंड आवर केस स्टडीज फोकसिंग ऑन दैट। लास्ट का थोड़ा एयरलाइन इंडस्ट्री का डेटा दे रहे हैं कि इन द कंट्री, इन द प्लेस, कॉन्टिनेंट वेयर वी आर लोकेटेड, दिस इज द रेवेन्यू, पैसेंजर्स एंड ऑल दैट, एंड दिस इज द ग्लोबल रेवेन्यू एंड पैसेंजर्स। दैट इज गिविंग यू अ फीलिंग दैट हाउ बिग द इंडस्ट्री इज। सभी इंडस्ट्री बड़ा है वैसे। देन फ्लाइट मैनेजमेंट एक्टिविटीज, फ्लाइट मैनेजमेंट एक्टिविटीज आर सर्विसेज वाया एयरपोर्ट फीस, कहां पर रुकेंगे वगैरह, एयर ट्रैफिक, ऊपर उड़ेंगे तो वहां का, एयरक्राफ्ट ग्राउंड हैंडलिंग, टू गेट डाउन, टू फ्यूल, फिल अप द एयरलाइन विद द फ्यूल, फिर आपको उड़ने के लिए जगह देना, वो सब ग्राउंड में आपका लगेज रखना, ये सब, ऑल दीज दैट ऑल सर्विसेज। और इंडस्ट्री चैलेंजेस, एवरी इंडस्ट्री इज वेरी कॉम्पिटिटिव, सब जगह नए लोग आ रहे हैं, प्राइस कंपटीशन है, मार्केट में रेगुलेटरी चेंजेस है, इकोनॉमी है, इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स है, देन यू कैन सी दैट कि गवर्नमेंट का प्रेशर्स है, कुछ भी, सारे तरह के इंडस्ट्री में ये सब हो रहा है। तो कुछ इंडस्ट्री चैलेंजेस बता दिया, बोला बहुत हो गया। अब आ गया इन दिस इंडस्ट्री डिफरेंट एयरलाइन कंपनीज आर देयर, then how we evaluate their performance, what are the key parameters on which the performance are evaluated. So they are saying available seat kilometer, seat into kilometer. Suppose Indigo Airlines, they have 500 flights, in every flight there is 150 seats, so 150 into 500 total seats, and they will be traveling one flight, 2 flights will be traveling between Kolkata to Delhi. The distance is say 1000 kilometer. तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई, सीट इंटू किलोमीटर बिकम्स अवेलेबल सीट किलोमीटर की इंडिगो का कैपेसिटी कितना है, टोटल सीट्स मल्टीप्लाइड बाय टोटल किलोमीटर, इट विल बी गिविंग यू सीट किलोमीटर। दिस इज कॉल्ड द कैपेसिटी ऑफ द एयरलाइन। जितना कैपेसिटी होगा उतना बढ़िया, that means we can serve so many customers. So to increase the capacity we need to increase the airline. So this is one of the measure in airline industry, not only for quads, for everybody, available seat kilometers, revenue per available seat kilometer, जितना revenue आया उसको seat kilometer से divide दिए तो क्या मिलेगा, per seat per kilometer how much revenue we are generating, are we generating better than others, लोड फैक्टर,
out of the seats, how many seats are always booked? Revenue passenger kilometers. Revenue passenger kilometer matlab number of passengers into kilometer becomes passenger kilometer revenue divided by that. तो एक पैसेंजर 1 किलोमीटर जाने से कितना रेवेन्यू हमें मिल रहा है? बोलेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू पर अवेलेबल सीट किलोमीटर एंड रेवेन्यू पैसेंजर किलोमीटर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? हियर इट इज सीट, हियर इट इज पैसेंजर. पैसेंजर सीट पे ही तो बैठेगा. व्हाट इज द डिफरेंस? रेवेन्यू इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग एयरलाइन टोटल रेवेन्यू बाय इट्स टोटल available kilometer. It is a measure of potential revenue generation. It is saying how much revenue per seat you can generate. And this is RRK is calculated number of passengers multiplied by total distance. It shows the number of kilometers traveled by paying passengers who are referred to as the revenue passengers. This is, you can say, the actual data. And this is, you can say, how much revenue you can generate. This is capacity to generate revenue. And this is said as what is actually per passenger kilometer you are generating revenue. It is not that these are the only measures, but industry में ये measures use किए जाते हैं airline company का performance evaluate करने के लिए. The C02 emission still airline companies are running based on fossil fuel. उसका कोई इलेक्ट्रिक एयरलाइन अभी तो नहीं आया है. मे बी द इन्वेंशन इज गोइंग ऑन. गाड़ी में तो इलेक्ट्रिक कार एंड ऑल दैट केम वेयर वी आर नॉट यूजिंग फॉसिल फ्यूल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, हाइड्रो जनरेशन एंड ऑल दैट. बट प्लेन उड़ने में अभी भी फॉसिल फ्यूल ही चल रहा है. C02 एमिशन होता है. कितना एमिशन कर रहे हैं? पंक्चुअलिटी, टाइम पे पहुंचना. द एयरलाइन कंपनी रीचिंग ऑन टाइम, दे आर परफॉर्मिंग वेल. देन इंडस्ट्री बॉडी, पूरा एयरलाइन कंपनी का एक बॉडी है नेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे. दे हैव पुट सम नॉर्म्स, सम कंडीशंस. दे थिंक अबाउट द बेनिफिट ऑफ ऑल एयरलाइन कंपनीज हु आर एंगेज्ड इन द बिजनेस. तो वो बॉडी का काम है. Because the number 4 measure is based on actual revenue per passenger, so that you can compare with others. कि दूसरा ऑर्गेनाइजेशन में पर पैसेंजर किलोमीटर कितना रेवेन्यू, हमारा कितना है. मेजर्स आर देयर फॉर डूइंग कंपैरेटिव एनालिसिस, फॉर योर ओन एनालिसिस इन द पास्ट. जिससे कि वेयर यू आर इंप्रूविंग, वेयर यू आर लैगिंग, वेयर यू नीड टू डू समथिंग, दैट यू विल बी एबल टू एनालाइज. तो अब एग्जाम में क्वेश्चन मेजर निकालने नहीं देगा. वो अलग से आपका लास्ट का 4 साल का कोई कॉम्पिटिटर का दे देगा. बोलेगा बोलो, समझाओ क्या करना है, कहां इश्यूज है. दैट वे if the APM exam is there, they may be asking you calculate measures, निकालो ये सब. लेकिन अभी केस स्टडी एग्जाम में निकालने नहीं देंगे. वैसा है सर. Now they are talking about this company, that is Corejet overview. This company established 20 years back. Then they are from which, who started this company? There are 2 persons who has interest in roaming and all that. They started their company 20 years back. उस समय पैसा उन्होंने फैमिली से लिया, चालू किया. फिर उन्होंने 2 एयरलाइन उड़ाना चालू किया, शॉर्ट डिस्टेंस, रीजनल. और उसमें उन्होंने क्या किया? कोई खाना पीना नहीं, कुछ नहीं. They become very successful and they purchase further airlines, grow their business and all that. Then वो लोग बुढ़े हो गए. वो लोग अपना शेयर्स वगैरह बेच दिए. कंपनी का शेयर दूसरे के पास चला गया. कंपनी ने आईपीओ ला दिया. आईपीओ लाने के बाद अभी जो प्रमोटर्स थे उनके पास कोई शेयर नहीं है. दे आर लेफ्ट. अब पूरा का पूरा शेयर कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास है, कुछ इंप्लॉइज के पास है और कुछ जनरल पब्लिक. हु आर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स in a company? Suppose Reliance, I will say institutional investors having 40% share, suppose. Then who are the institutional investors? Banks, financial institutions, insurance companies, mutual fund. Because they are not purchasing 1 or 2 or 100 shares. They are getting handsome share. I can say high net worth individual also. जिन लोग मान लीजिए, क्या बोले, जो मिस्टर इंडिया में जिनका डेथ हो गया 63 ईयर में, क्या था,
मिस्टर झुनझुनवाला या बाहर कोई, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, राकेश झुनझुनवाला एंड ऑल दैट. आप किसको भी बोलिए यार, दे आर नॉट मे बी अ फंड और एनीथिंग, बट हम लोग उनको इंस्टीट्यूशनल ही बोलते हैं. मेरे जैसा इन्वेस्टर को बोलते हैं रिटेल, पब्लिक. मान लीजिए रिलायंस का 50 शेयर ले लिए, आईटीसी का 200 ले लिए, ये सब कुछ नहीं है. सो दीज आर कॉल्ड जनरल पब्लिक, normal retail investors, but those are called institutional investors. Institutional investor attend the company's meeting, board meeting. If they are in the board, shareholders meeting, they put vote and all that. They are concerned what the company, because they have invested handsome money. So they are concerned. So in the company nowadays, the company formed 20 years back, but 10 years back they brought their IPO, and now in the company, institutional investors are 80%, 10% employees and 10% general public, और कोई नहीं है. The company has grown very far. There is a, you can say that there is a CEO in the company who is there for last 10 years. उसने कंपनी को बहुत आगे ले गया है, बहुत अच्छा काम किया है. Then they are saying that in this continent where this company is there, in this type of low frill airline company, then there are major 4 players are there. The first player means there are many other companies. Total they are saying 30. Out of 30, 27 small companies are there. They are having 60% market share. The Brigare, you can say our competitor, major competitor, 17% market share. We have 14%, and there is one LKK have 9%. Relating to this, nothing is given. Now in the exam, they will create scenario. The Brigare is, you can say, want to acquire you. They are putting a bid on acquiring your shares to the institutional investors and all that. You don't want to be taken over. What are the anti-takeover strategies you can do? For that, they are giving some scenario. हम लोग का शेयरहोल्डर लोग ये बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऐसा बात के कुछ बोलेंगे, बट आपको फिर उसको इलेबोरेट करना है. हमें उनका होना है, नहीं होना है क्या, इसका आंसर कहीं नहीं लिखा हुआ है. बट यू कैन से दैट जब दिया हुआ है कुछ दे सकता है, नहीं देगा हो सकता है. जब आपने कोई भी केस स्टडी वगैरह करेंगे तो आपने ये सब डिस्कस करेंगे. यहां नहीं देगा, आपके एग्जाम में दे दिया हो सकता है. डिफरेंट व्हेन यू आर टेकिंग अनदर कंपनी, वैल्यूएशन, मर्जर्स, फंडिंग, सभी तो आएगा ना. तो जब एक बार डिस्कस करेंगे फंडिंग, वैल्यूएशन, मर्जर्स, तो सारा जगह वैसे ही एप्लीकेबल होगा. सिनेरियो को देखकर वी नीड टू राइट द आंसर्स. So that they are saying the market is spread out. Then they have made some graph कि भाई हम लोग का revenue 20 साल में, routes which we have covered. Earlier we were covering one route, now we are covering 20 routes. Earlier years in passengers, we were putting this much passengers, now we are covering 20 years में 90 million passengers. ठीक है? The growth. Then the ownership, as I said, 80% with the institutional investors, 10% with employee, 10% with the general public. Then in every company, when you are doing good business, there are some inside strength, because we are covering maximum routes. All small routes we are covering, 130 routes. We are having our own flights. Out of 300, we are having 225 flights our ownership. Normally in airline industry, the airline companies are having the flights on lease, but we have 225 flights our own, and only 25% flights are on lease. All the flights which we are having our own, they are all recently purchased flights. They are laced with good technology, where the C02 is less, where the most of the things are automation, the consumption of fuel is less, so all the things are good. And only 25% of the flights are leasing. They are also not very old one. That means all the flights we are using, which are very recent one, which will be giving us economies of scale, and which is giving us less effect on the environment, because the whole world is concerned with environment protection. अभी G20 में सबसे पहले मोदी जी ने वही चालू किया था. Then the one other thing, we are always using advanced technology. Whether
At so many places, it's a self-service. You come, check in on your own, you put your luggage on your own, apne aap aayega. No staff are involved at so many places. That means we are using very high-fi technology in our process, which helps us to become low-frill airlines. कॉस्ट गिरता है, इकोनॉमी बढ़ता है, चेकआउट प्रोसेस बढ़ता है, समय पे पहुंचते हैं, C02 गिरता है, एंड वी हैव सो मच स्टाफ वर्किंग. There are pilots, there are crew members, there are administrative staff. Those staff are there, they are regularly trained, and they are not hired without giving training, without proper interview. And we always think about their remuneration, their health and safety. Then we have 6 executive and 5 non-executive directors. You will say, what is executive, non-executive? I will discuss. 6 executive and 5 non-executive directors. Who are they, what they are doing, different proportion, सब लिखा हुआ है. ठीक है. अब सीमा होता तो यहां पर और बताता कि भाई ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कितने साल से है, कितने दिन से ये कर रहा है, पहले ये क्या करता था, थोड़ा और डिटेल बता देगा, उसका नाम भी बता देगा. एसीसी नहीं बता रहा है, क्या करना है नाम लेकर यार, क्या करना है. मे बी दे वांट टू से दैट इन द एग्जाम ओनली. सो सीमा हर चीज को थोड़ा और डिटेल में बता रहा है एज कंपेयर टू एसीसी. दैट्स ऑल. देन वी हैव कमेटी स्ट्रक्चर. ऑडिट कमेटी है, नॉमिनेशन कमेटी है, रेम्यूनरेशन कमेटी एंड सेफ्टी कमेटी. What is the meaning of these committees? What functions they will do? We need to understand. That's a part of corporate governance. तो जब मैं इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, मैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस पूरा डिस्कस करूंगा फुल्ली. रिस्क. What are the risks we are facing? Based on industry, based on our internal strength and weaknesses. एक तो हम लोग का सेफ्टी रिस्क है, कस्टमर और स्टाफ का, किसी को भी प्रॉब्लम होगी, झगड़ा, कितना सारा एयरलाइन कंपनी में इंसिडेंट होते रहता है, रिसेंटली बहुत सारा हुआ है. द ग्रोइंग इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, कहीं पर वेदर है, नहीं उड़ पा रहे, नहीं जा पा रहे, ऐसा हो गया, क्लाइमेट रिस्क यू कांट कंट्रोल. दीज आर एक्सटर्नल रिस्क, बट फिर भी है तो सही ना. मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क, इकोनॉमी बर्ड डाउन, मे बी कोरोना और व्हाटएवर, उसके कारण इकोनॉमी डाउन, पीपल आर नॉट यूजिंग फ्लाइट्स एंड ऑल दैट. So economical risk, foreign exchange risk, and the availability of website and certain, maybe there is any IT issue, website app is not working, problem happen, कुछ भी हो सकता है. Then some information from the website of the company, what we do about our company, about our mission, about our values for our customers, for our employees, for our sustainable development, for environment, for the whole community. Because बड़ा बड़ा कंपनी लिस्टेड तो ये सब करेगा ही ना. And then they have given some graph, which Seema will give you full PL account, balance sheet, then segment wise information, so many things. ये लोग खाली ग्राफ बना के दे दिया कि हमारा रेवेन्यू 2018 से 2012 कैसे बढ़ा है, हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2018 से 2012 कैसे बढ़ा है, हमारा आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड परसेंटेज, फ्रॉम 2018 टू 2012 कैसे बढ़ा गिरा है. देन देयर इज पंक्चुअलिटी, द एयरलाइंस विच वी आर रीचिंग इन द डेस्टिनेशन इन टाइम. सो इन 2000 यू कैन से 18 वी वेयर 77% इन टाइम, बट नाउ वी आर 79% इन टाइम. पहले और भी ज्यादा था, थोड़ा कम हुआ है. परसेंटेज इज रिटन ईयर. Customer satisfaction, it is very high level. पहले 74% customer were satisfied. Now 78% are satisfied. Then cost breakup. Cost का breakup में बोल रहा है कि the depreciation and leasing 8%. Major portion is depreciation, 225 hours. Airport ground handling. फ्लाइट में फ्यूल भरना, इधर से बैगेज ले जाना, उधर ले जाना, पैसेंजर को एक जगह से फ्लाइट में चढ़ाना, ऑल दीज आर ग्राउंड सर्विस. दैट इज 27% कॉस्ट. देन क्रू कॉस्ट, पायलट्स एंड कैबिन क्रू 15%. दैट इज ऑल सैलरीज एंड ऑल दैट, डायरेक्टर सैलरी, एवरीथिंग. देन एयरक्राफ्ट कंट्रोल कॉस्ट, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट. देन मेंटेनेंस कॉस्ट, गड़बड़ी वगैरह होने से ओन्ड एयरक्राफ्ट ओनली, जो लीजिंग वाला है वो खुद मेंटेन करता है. Then sales and marketing cost, fuel cost. The major cost is airport, fuel and cabin crew.
Others are there, but these are 22 plus 27, 49 plus 15. That is coming 64%. तो ये तीन तो ही है. ये तीनों कॉस्ट पे हमें ज्यादा ध्यान देना है, कंट्रोल करना है. एंड देन द क्रू इंक्लूड्स, कौन कौन उसके अंदर है बता रहा है. व्हाट इज अदर कॉस्ट आईटी एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब है. आईटी एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल आर अदर कॉस्ट. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. बोला स्टोरी खत्म. सीआईएमए के अंदर होता तो ये ग्राफ के साथ साथ थोड़ा और डिटेल देता और डिटेल में जाकर चीजों को बताता. तो सीआईएमए को टाइम भी ज्यादा दे रहा है कि भाई तुम 40 दिन पहले लो मटेरियल, पढ़ो सब कुछ और तैयार हो. When we will be giving exam, we need to read the pre-seen materials 2 to 3 times. Even though it will be there in the tab in the exam, जो मैंने शुरू में बोला. But if you don't read the pre-seen material, आपको बार बार एग्जाम में खोलना पड़ेगा. And you don't have that much time that you open the pre-seen material again and again in the exam. That means you are not prepared for the exam. Even though ACC student will be getting on 20th November, but still they need to read 3 times. चाहे मैं क्लास में कितना बार भी रीड करूं, आपको रीड करना ही होगा. सो दैट इन एग्जाम यू डोंट नीड टू ओपन अगेन एंड अगेन. आपको मोटा मोटी चीज ध्यान रहे, आप फटाफट उसको यूज करके लिख पाओ. व्हाई यू विल ओपन द मटेरियल इन एसीसीए. सपोज दिस थिंग यू वांट टू यूज इन योर राइट अप. आप इसको कॉपी करिए, पेस्ट करिए. आपको मालूम होना चाहिए पेज से ये लेना है मेरे को. यू कांट जस्ट कॉपी पेस्ट एंड कीप इट लाइक दिस. यू नीड टू डू सम चेंजेस ऑन दैट, बट यू कैन सेव योर टाइम. सीमा तो कर ही नहीं सकता, उनका तो कॉपी पेस्ट प्री-सीन से होएगा ही नहीं. करेंगे कहां से आप. तो नॉर्मली pre-seen information you need to be ready with by reading 2-3 times, so that when they will be giving scenario which is unseen, then you can apply this on the scenario and you can write properly. मैं कोई unseen में नहीं जा रहा. unseen हम लोग के पास वैसे है भी नहीं. इसका मेरा अलग से बनाया हुआ है, कुछ है, इंस्टीट्यूट से मिला था, वो हम लोग क्लासेस में यूज करेंगे. बिकॉज इसका unseen क्या था वो इंस्टीट्यूट कब रिलीज करेगा. when the exam results will be out in the next month by around 20th of October. तब इसके बेसिस पे जो जो क्वेश्चंस एग्जैक्टली नहीं, वो 2-3 पेपर वो लोग अपलोड करेंगे. वो अभी तो नहीं है, वो अभी कहीं से नहीं मिल सकता, लेकिन हमारे पास है, हम उसको डील करेंगे. हम डील इसलिए नहीं करेंगे कि आपसे आंसर पूछना है. मैं पढ़ाया कहां हूं कुछ भी. मान लीजिए क्वेश्चन ही जो ना पर्टिकुलर एरिया स्ट्रैटेजी, हम स्ट्रैटेजी सारा डिस्कस करेंगे. पहले बात करेंगे टेक्निकली, फिर उसको यहां अप्लाई करेंगे. दैट वे वी विल डिस्कस. आई विल से दैट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू. जब आप क्लास के बाद अभी जब मैं मेल करूंगा तो मेल में आई विल बी शेयरिंग दिस क्लास स्लाइड्स एंड आई विल बी शेयरिंग द प्री-सीन मटेरियल विच आई रेड, है ना. सो आप मेल जब मिलेगा तो ये जो नीचे प्रोफेशनलिज्म लिखा हुआ है, इट इज 20 फॉन्ट साइज 7-10 पेजेस आई हैव रिटन. आप इसको पूरा मटेरियल को लास्ट तक पढ़ के रखेंगे. डे आफ्टर टुमारो रीडिंग विल टेक हाउ मच टाइम, 1 hour. 1 hour will take this. 20-25 मिनट आप एक बार प्री-सीन को रीड करके रखेंगे, ठीक है. और अगर आपको और पढ़ना है और टाइम है, मोस्ट वेलकम. तो आप इन दैट केस कोई पर्टिकुलर एरिया, मान लीजिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस, आप अभी पढ़ना चाहते हैं तो आप यहां से उसका रिकॉर्डिंग कर सकते हैं. बट कम से कम ये जो मटेरियल में जो मैंने लिखा है और जो प्री-सीन मटेरियल दूंगा वो रीड करके आप नेक्स्ट क्लास में रहेंगे. आप लाइव क्लास नहीं कर रहे नेक्स्ट क्लास, मे बी यू आर बिजी, तो भी रीड कंप्लीट करिए. बिकॉज फिर मैं नेक्स्ट क्लास के बाद होमवर्क देने लग जाऊंगा, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे. आई विल ऑलवेज बी गिविंग यू मोर एंड मोर होमवर्क ऑन वेडनेसडे, सो दैट यू आर गेटिंग एम्पल ऑफ टाइम टू सबमिट द आंसर्स. मंडे को मैं जनरली कमती होमवर्क दूंगा, सो दैट यू कैन प्रिपेयर प्रॉपरली. वेडनेसडे के बाद यू विल बी गेटिंग एम्पल ऑफ टाइम टू सॉल्व द होमवर्क. तो अभी मैंने होमवर्क आपको केवल रीड करने का दिया है. If you get time, you can refer any video of the last term. Not required. आप इन दोनों को रीड करके रखेंगे. बस इतना ही मेरे को चाहिए. Nothing else. Okay? Leaving for today. Any specific thing anybody want to ask before leaving? किसी को कुछ बोलना है, कुछ confusion है? Tata, bye bye. Okay. The class will be as per schedule, which is already shared with all of you. In the WhatsApp group also, we will share the schedule and everything. This class will be uploaded on YouTube fully. So आपको सॉफ्टवेयर से चाहिए ही नहीं है, क्लास YouTube में थोड़ा देर बाद अपलोड कर दिया जाएगा.
आपको यूट्यूब का लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाएगा, आप वहां से देख पाएंगे वीडियो, लेकिन सेकेंड क्लास से नहीं. दिस क्लास विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब फुल्ली. ओके, थैंक यू. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सीमा एंड ACC एग्जाम फॉर केस स्टडी. Study hard. Yeah, we will add because there are many who joined recently. तो थोड़ा देर में हो जाएगा सब. Let my team members come, they will do the needful. Okay? If anybody is missing from old batch, old registered student, they all will be added. Don't worry. Okay, thank you.